Now, for our next session, in order to learn about guest health policy in Charak Samhita and to know the role of Ayurveda in shaping modern health diplomacy, let's call our today's guest speaker, Dr. Yogesh Diole, who is a professor and consultant of Kaya Chikitsa at G.J. Patel Institute of Ayurvedic Studies and Research, Gujarat. He is specialized in Kaya Chikitsa and Manas Rog and has been awarded a PhD by Gujarat Ayurvedic University and has over 17 years of professional experience. Please, sir, guide us with your knowledge and wisdom. Yes, am I audible? Yes, sir. Yeah, sure. Thank you so much. I am happy to see the young professionals, budding professionals who have entered the journey of Ayurveda through this TCP. I'm thankful to Dr. Vedantam Giridhar, the principal of Guru Gorakshnath Faculty of Ayurveda, this university, Dr. Navodaya Rajuji, for inviting me as a research person in this on this auspicious occasion. I will share my screen. Is it visible? My screen is visible. Yes, sir, it is visible, sir. Go for slideshow, sir. Okay. Is it okay now? Yes, sir, it is clear, sir. Please proceed, sir. Thank you. Okay. Yeah. So today's topic is about Charak Samhita, Ayurveda role in shaping modern health diplomacy. What we'll see in next half an hour is that we'll learn something about Charak Samhita. Then we'll see some pearls of Charak Samhita and Ayurveda wisdom. What is modern health diplomacy and our challenges? How we can contribute to the modern health diplomacy? Do you know who is he, students? Anyone? Is there any answer from students? Am I audible clearly? Yes, sir, you are. He is Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, fine. So I think there will not be any interactions because of this. I want to see the students, and if they can interact, that will be nice. Otherwise, I will go straight away for the lecture. Yeah, what APJ Abdul Kalam ji says, he is a missile man, and dreams is not what you see in sleep. It is the thing which doesn't let you sleep. So, as a young Ayurveda scholars, you need to have some dream, and don't have a small dream, have a big dream. That will lead your journey from local to global, as you are in the auspicious place of Yogi ji and placed by Narendra Modi ji. He always say global from local. So you need to improve your circle of influence from local to global. आप वहां पे है एक लोकल वैद्य बन के रहेंगे, मगर आप अपना विस्तार एक्सपांड करेंगे तो एक ग्लोबल वैद्य बनने के जर्नी में आप एक सहभागी हो सकते हैं। आपको अपना ग्लोबल रिकॉग्निशन बनाना है। दो चीजें हैं, एक तो ये होता है कंपल्सिव एंड अदर इज इम्पल्सिव। आपने अपने एकेडमिक जर्नी में देखा होगा कि कोई टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दे दिया, कंपल्सरी करना है, होमवर्क करना है, और वो होमवर्क आपने कर लिया, मगर उसमें से आपको क्या मिला? आपने जो मन से किया, इम्पल्सिव, दैट विल बी अ इम्पल्सिव वर्क। इसलिए एजुकेशन जो है, आपको जो लर्निंग जो है वो बाय हार्ट होनी चाहिए। सो इफ यू आर डूइंग योर एफर्ट्स बाय योर सोल फ्रॉम राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, then it will be more effective. So Charak Samhita is that platform which
can lead you to local to global. चरक संहिता का जो कोटेशन है, ये कहता है कि यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न अस्ति तद न तत्क्वचित, दैट वॉट एवर इज अवेलेबल हेयर इट यू कैन फाइंड इट समवेयर एल्स ऑल्सो, बट वॉट एवर इज नॉट हेयर इट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर. सो एक शब्द में अगर चरक संहिता आपको बताऊं तो चरक संहिता हमारा विकिपीडिया है. जैसे आप स्मार्ट जनरेशन है, और स्मार्ट जनरेशन क्या करता है, गूगल करता है. कुछ भी क्वेरी है तो पहले गूगल करना है, तो गूगल में सबसे टॉप प्लेस पे जो आता है नॉलेज का रिसोर्स, दैट इज विकिपीडिया. सो विकिपीडिया जैसे आपने गूगल पे देखा होगा, वैसा ही एक चरक संहिता जो है हमारा एक विकिपीडिया है, जो ज्ञान का सागर है. हम उसके बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे. चरक संहिता इज अ लैम्प, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मनः, ताभ्याम भुजक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा न अपराध्यति. दैट मीन्स इट इज अ लैम्प विच एनलाइटन्स योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, टू लीड टू द प्योर नॉलेज. सही नॉलेज क्या है, सही ज्ञान क्या है, उसके बारे में जो ज्योति है वो शास्त्र आपको देता है. और चरक संहिता एक ऐसी ज्योति है, वो आपको ज्ञान के मार्ग पर प्रवृत्त करती है. अगर आप देखें चरक संहिता का काल क्या था, चरक संहिता ओरिजिनल चरक संहिता जो सबसे पहले लिखी गई, वो अत्रेय, जो गुरु का नाम था पुनर्वसु अत्रेय, उनके एक शिष्य थे अग्निवेश. तो अग्निवेश, he has written documented this text first in the period 1500 to 1000 BC. अग्निवेश तंत्र के नाम से वो प्रसिद्ध था. उसके बाद चरक जो थे, चरक महर्षि, उन्होंने उसको रिडैक्ट किया, मतलब उसके ऊपर प्रतिसंस्कार किया. और द्रुडबल जो 400 ईसा पश्चात 400 में, 400 शती में थे, उन्होंने उसको कंप्लीट किया. तो ये जो तीन ऑथर्स है, पुनर्वसु अत्रेय जी ने अपना ज्ञान जो था वो अग्निवेश को दिया, अग्निवेश का जो तंत्र था उसको चरक ने लिखा, और चरक ने लिखने के बाद उसको पूरा करने का काम जो है वो द्रुडबल ने किया. ये चरक संहिता अभी हम देखते हैं. तो इसको लगभग 2000 साल हो चुके हैं, जो हम अभी पढ़ते हैं, जो संस्कृत में है. अगर हम एलोपैथिक नॉलेज देखते हैं, जैसे आप सब लोग जो है वो 12वीं पास होके आते हैं, 12th पास होने के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके आते हैं और अपने बुक्स देखते हैं, वैसे ही एक बुक आप एलोपैथी का देखेंगे, मॉडर्न टेक्स्ट जो है वो, दैट इज हैरिसन्स प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन. तो हैरिसन्स जो है उसकी 22nd एडिशन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है. मगर हमारा जो चरक संहिता है, वो चरक संहिता वैसे ही जो 2000 साल पुराना एडिशन जो है संस्कृत में लिखा गया, वही हम अभी यूज करते हैं. तो इसमें कंपैरिजन जो है वो एडिशन का है, नॉलेज का कंपैरिजन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि चरक का जो नॉलेज है, हैरिसन्स के आपने फर्स्ट एडिशन देखा और 22nd एडिशन देखा, तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे. मगर चरक संहिता के सूत्र जो है वो यथावत अभी भी एप्लीकेबल आपको मिलते हैं. तो संस्कृत में है, समझने में थोड़ा सा आपको उसको चैलेंजेस है, मगर जब आप समझ जाएंगे तो उसको अप्लाई करने के लिए जिंदगी आपके लिए पूरी जिंदगी भर वो चलने वाला है. तो ये जो चरक संहिता का एडिशन है, ये चरक संहिता हमें अभी क्या लगता है ये देख के पढ़ना जरूरी है. चरक संहिता न्यू एडिशन जो आपके पास मैं आपको बताऊंगा आगे जो है, एक चरक संहिता का अभी का कंटेम्प्रेरी एडिशन के ऊपर हमारा काम चल रहा है. उसके जो ओरिजिनेटर है, इज डॉक्टर गोपाल वशिष्ठ. ही हैज डन 50 years ऑफ प्रैक्टिस इन यूएसए. अमेरिका में वो 50 साल से प्रैक्टिस करते थे रूमेटोलॉजिस्ट की. मगर रूमेटोलॉजी की प्रैक्टिस करने के बाद उनको ये पता चला कि देर इज समथिंग लैकिंग इन द प्रैक्टिस. ये जो लैक्यूना है मॉडर्न साइंस का, जो सिर्फ लक्षणों को ट्रीट करता है, डिसीज को ट्रीट करता है, मगर स्वास्थ्य को ट्रीट नहीं करता है, स्वास्थ्य अवेलेबल नहीं होता है. तो वो स्वास्थ्य का जो आइडिया है वो लेके वो भारत में आए, और उन्होंने पूछा कि आयुर्वेद में ऐसा क्या उपाय है जो स्वास्थ्य के लिए हम कर सकते हैं, हेल्थ के लिए कर सकते हैं. तो उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सा बुक आयुर्वेद के लिए रेफर करते हैं. तो जो सीनियर पर्सन्स थे, पर्सनैलिटीज है, उन्होंने कहा कि हम चरक संहिता यूज करते हैं. तो चरक संहिता कब लिखी गई है? 2000 साल पहले लिखी गई है. अब लिखी जानी चाहिए क्या? उसकी नई एडिशन, इतने सारे चेंजेस उसमें हुए हैं, वो होना चाहिए क्या? तो सबने कहा हाँ. तो दैट एफर्ट स्टार्टेड बिफोर 12 years. हम उसके ऊपर 12 साल से काम करते हैं, और 12 साल में जो
प्रोडक्ट है ये डेवलप जो हुआ है चरक संहिता ऑनलाइन एडिशन का, वो आपके सामने आपको गूगल में चरक संहिता ऑनलाइन एडिशन में मिलेगा। मैं आपको वो भी बताऊंगा आगे जाके। और ये जो एडिशन है वो एडिशन आपको हमेशा अपडेट करने के लिए सूचित करती है। अपना जो नॉलेज है वो आजकल में कैसे उपयुक्त है, हम पेशेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए ये उपयुक्त है। अगर चरक संहिता का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, आपके सिलेबस में ये है कि चरक संहिता एक विषय के रूप में है, वो आप आगे देखेंगे, मगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 8 सेक्शंस में डिवाइड किया है। अगर याद रखना है आपको तो पहला सेक्शन जो है सू से शुरू होता है, सूत्र। उसके बाद निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा और कल्प। ये जो 8 सेक्शन, कल्प और सिद्धि, ये जो 8 सेक्शन है उसमें हर एक पे कुछ चैप्टर्स है। और वो चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। उन चैप्टर्स का एक एक मीनिंग है, हर एक में एक एक कुछ सूत्र दिए गए हैं। टोटल चरक संहिता में 12,000 सूत्र है, 12,000 सूत्र है। अब सूत्र का मतलब जो है, अभी फिलहाल जो अवेलेबल है उसमें 9,498 सूत्र हमारे पास प्रेजेंटली अवेलेबल है। जो ओरिजिनल चरक संहिता थी उसमें से हमें नियरली 2,500 सूत्र आर लैकिंग इन दैट संहिता। सूत्र, ये जो शब्द है, एक सूत्र का लिटरल मीनिंग जो होता है वो धागा होता है। वो धागा मतलब क्या है कि एक जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं थ्रेड से, एक थ्रेड आपको दूसरी जगह पे ले जाता है, तो वो तीसरी जगह पे ले जाता है। तो ऐसा ही सूत्र जो है, इट इज लाइक अ माइक्रोचिप ऑफ नॉलेज। हर एक सूत्र का एक बहुत बड़ा एक्सपांडेड नॉलेज है। और वो एक्सपांडेड नॉलेज जो है वो सूत्र समझने के बाद आपको मिलता है। और वो सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो उस सूत्र का एप्लीकेशन अपने जीवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको जो आगे पढ़ना है सिलेबस में, सूत्र ही पढ़ना है और सूत्र याद रखने हैं। अगर वो सूत्र याद रखते हैं तो आपका नॉलेज और उसका बेसिक एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से सफल होता है। चरक संहिता कैसे डेवलप हुई अगर हम ये देखते हैं तो इट इज अग्निवेश का सिलेबस, आपका जो सिलेबस आपको मिला होगा, तो उस सिलेबस में अगर हम अग्निवेश का सिलेबस देखते तो उस जमाने में एंशियंट एरा में बहुत सारा सिलेबस बड़ा था। मतलब क्या है, दर्शन थे, योग शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र था, उपनिषद थे, वेद थे। उसमें से जो सूत्र है ऋग्वेद और अथर्ववेद, इन दोनों में से जो हेल्थ से रिलेटेड सूत्र है, औषधि सूक्त में से जो सूत्र लिए गए हैं, उन सूत्रों को कंपाइलेशन करके फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो आयुर्वेद के बनाए गए और उसके अनुसार चरक संहिता का विकास हुआ। हेल्थ और डिसीज दोनों के बारे में, मतलब उसका जो प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि प्रशमनम, मतलब स्वास्थ्य का स्वास्थ्य रक्षण होना चाहिए, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ होना चाहिए। और आतुर का विकार प्रशमन मतलब डिसीज मैनेजमेंट भी उसमें होनी चाहिए। इनका जो कंपाइलेशन है, उनका जो सूत्रों का जो एक एक तरह से संभार है, उस संग्रह जो है वो चरक संहिता में आपको आप देखते हैं। ये सूत्र ऐसे ही लिखे गए हैं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने पेशेंट के उन सूत्रों का उपयोग किया और उसको प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया। मतलब क्या है कि रैशनल एंड साइंटिफिक एविडेंस जो है, प्रमाण, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आएगा, युक्ति प्रमाण आएगा, अनुमान प्रमाण आएगा। ये सब एविडेंस बेस्ड मेथोडोलॉजी जो है वो फॉलो करते करते वो सब संहिता में सूत्र उन्होंने लिखे हैं। बहुत सारे सिंपोजिया, जैसे आपने देखा होगा, कोविड एक बहुत बड़ा चैलेंज था 4 साल पहले। ये जो चैलेंज था उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हुए, सेमिनार्स हुए, सिंपोजिया हुए। तो जब भी कोई, अभी अगला जो टॉपिक हमारा है मॉडर्न हेल्थ डिप्लोमेसी, जब भी कोई हेल्थ चैलेंज आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनको, उनका मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं और उस ओपिनियन के अनुसार आगे की पॉलिसी हम तय करते हैं। तो वैसे ही चरक संहिता में आप देखेंगे तो उसमें करीब करीब 7 सिंपोजियम, 7 कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन हुआ, जिसमें बहुत सारा चरक संहिता के वक्त में जो देश का विस्तार था वो अफगानिस्तान से लेकर चाइना तक, बहुत बड़ा आशिया खंड तक वो पूरा विस्तार था। और तो सभी साइंटिस्ट, सभी वैज्ञानिक उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते थे और अपना अपना मत प्रदर्शित करते थे। जब ये मत प्रदर्शित करते थे उनका हर एक एंगल से डिस्कशन करके उसके बाद कंक्लूजन जो है, जो फाइनल निर्णय जो है वो वहां पे लिखा गया है। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ a thorough discussion of all the sages, all the scientists in चरक संहिता।
देन प्रिसाइज क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड असेसमेंट, ये बहुत बड़ा एक हमारा एक हथियार है। जैसे हम आगे एलोपैथी या कंटेम्परेरी प्रैक्टिस में देखते हैं कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें बहुत सारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन हमें लिख देते हैं, और वो लैब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो इन्फेक्शन का सोर्स है या फिर कोई डायग्नोसिस है वो हमें उसमें बताना पड़ता है। मगर पुराने ज़माने में जब एंशियंट टाइम्स में जो था वो माइक्रोस्कोप नहीं था, और तब क्लिनिकल हिस्ट्री लेके क्लिनिकल फीचर्स जो है उन क्लिनिकल फीचर्स के आधार पे ही क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया जाता था और उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट की जाती थी। और वो भी उनके दोष दृश्य समूर्छना के अनुसार, मतलब जो पैथोजेंस है उसमें कौन से पैथोजेंस का कौन सी अवस्था बताई जाती है उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट की जाती है। अगर चरक संहिता को ओवरऑल हम देखते हैं तो देर आर 94 डिस्टिंक्ट डिसीजेस विच आर लिस्टेड इन चरक संहिता, एज वेल एज देर आर मोर देन 580 डिसीज कंडीशंस विच आर लिस्टेड इन चरक संहिता। और उसमें भी 2000 formulations, more than 2000 formulations are listed for medicinal use, as well as 620 herbs are listed in चरक संहिता। तो इतना सारा बहुत बड़ा डाटाबेस हमारे पास उस जमाने में उपलब्ध था। आज जो डाटाबेस हमें उपलब्ध है वो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ये जो क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड असेसमेंट है और उसकी ट्रीटमेंट है वो पर्सनलाइज वे में, वो पुरुषम पुरुषम वीक्ष, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन जो जिसे कहते हैं। हर एक पेशेंट का अलग प्रकृति है, हर एक अलग दोष है, उसके अनुसार संप्राप्ति अलग है, उसका पैथोजेनेसिस अलग है और उसकी चिकित्सा वहां पे बताई गई है। और उसका भी प्रिवेंट इम्फेसिस जो है चरक संहिता का मूल सिद्धांत जो है वो प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ के ऊपर निर्भर होता है। तो ये जो संहिता का डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज्यादा उसका महत्वपूर्ण, उस जमाने में जो किया है महत्वपूर्ण एक आधार बनाता है, शास्त्रीय आधार बनाता है। और अभी भी हम उसको यूज करते हैं और उसको पेशेंट में देखते हैं, पेशेंट में उसकी ट्रीटमेंट सूत्रों के आधार पर करते हैं और उसकी चिकित्सा का लाभ भी उतना ही अच्छी तरह से पाया जाता है। अब हमें क्यों लिखना है उसको, मतलब संस्कृत टेक्स्ट है उसको समझ में आ गया तो बस है। मगर अभी का जो जमाना चेंज हो गया है, जैसे आप उस जमाने में मोबाइल नहीं था, आप मोबाइल यूज करते हैं, बस आप स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो उस जमाने में उस टाइम पे उस स्थान पे क्या क्या अवेलेबल था वो अभी बहुत सारा चेंज हो चुका है, तो हमें उसका अपडेट बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। अगर हृदय वहां पे बताया गया है और आजकल टूडी को अवेलेबल है या ईसीजी अवेलेबल है, तो दोनों हृदय की गति के लिए, हृदय के स्ट्रक्चर को समझने के लिए टूडी इको और ईसीजी, इन दोनों का हमें पता होना जरूरी है। तो ये दोनों जो मिलाप है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एडवांस टेक्निक्स है और एंशंट नॉलेज एंड विस्डम है, इन दोनों का मिलाप चरक संहिता न्यू एडिशन में आपको देखने को मिलेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो बुद्धि है वो शास्त्र बुद्धि रखे। आपकी जो आज अगर चरक होते तो वो भी उसका अच्छी तरह से यूज करते। आपकी जो यंग स्कॉलर्स की बुद्धि है वो डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटेशन, एविडेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस, इसके ऊपर अच्छी तरह से डिपेंड होनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज है ये नॉलेज ऐसे ही आपका बढ़ते रहेगा। The objectives of this new edition, Charak Samhita new edition, were with to provide a Charak Samhita live edition with updates. इट कैन सर्व एज ए रेफरेंस मैनुअल। मगर आप, अगर आपको मैं लिंक भेजता हूँ और अभी दिखाऊंगा भी, उसमें अगर देखते हैं तो करंट अपडेट्स जो है बहुत सारे आपको उसमें मिलते हैं। और आयुर्वेद एक बेस्ट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सिस्टम अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब, ये उसका दूसरा एक उद्देश्य है जो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए दिखाते हैं। उसके फीचर्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा विकिपीडिया है, तो हमने विकिपीडिया का ही जो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है, मीडिया विकी सॉफ्टवेयर, उसमें उसको यूज किया है। ये ओपन एक्सेस है, फ्रीली अवेलेबल है, किसी को किसका उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज या कुछ देने की जरूरत उसमें नहीं है। इजी टू सर्च है। पहले ये था कि हमें मैनुअल सर्च करना पड़ता था कि एक एक संहिता का हर एक पेज, जब तक हम पूरी संहिता नहीं पढ़े तब तक आपको पता नहीं चलता था कि उसमें क्या है। ये जो है ये टेक्नोलॉजिकल यूज करके उसका कोई भी शब्द के बारे में आपको जानना है तो फटाक से आप उसको सर्च करके अच्छी तरह से देख सकते हैं। इंटरलिंकिंग और कंसेप्ट्स जो है, एक शब्द का दूसरी जगह पे कहाँ पे आया है और उसका एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हम कैसे कर सकते हैं, वो इसमें दिखाया गया है। उसके बाद हम आजकल जैसे आपको वीडियो देखने से या फिर साउंड सुनने से बहुत अच्छी तरह से पता चलता है, मीडिया फाइल्स होते हैं। तो लर्निंग में एक एडिशन है, तो सोशल उसके जो मीडिया फाइल्स है उसमें भी हम अपलोड कर सकते हैं, फोटोज अपलोड कर सकते हैं।
उसके कंसेप्ट का जो लिटरेचर है, जब ये जैसे बिखरा हुआ पड़ा है अलग अलग जगह पे, अलग अलग बताया गया है चरक संहिता में, तो वो एक ही जगह पे जाके उसके मोनोग्राफ्स हमने उसमें बनाए हैं। और जैसे कोई नया रिसर्च आता है, नई अपडेट आती है, तो हम उसको, एक स्टैटिक एडिशन नहीं है, एक डायनेमिक एडिशन है, तो डायनेमिकली आप हम उसको अपडेट कर सकते हैं, तुरंत हम उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर पुराना जो अगर लगता है कि इट इज आउटडेटेड नाउ, तो वी कैन रिमूव इट राइट अवे। तो ये जो है, और ये आपको सभी लैंग्वेज में गूगल ट्रांसलेट का और टेक्निकल टूल्स का आप यूज करके उसमें पढ़ सकते हैं, जैसे गुजराती है या हिंदी है या तेलुगु है, सब लैंग्वेज में आप ट्रांसलेटर का यूज करके पढ़ सकते हैं। तो दैट इज अ फीचर ऑफ दिस चरक संहिता न्यू एडिशन। ये कैसे हमें हेल्प करता है कि जैसे हमें पता है कि हमारे स्लो लर्नर्स होते हैं, मीडियम लर्नर्स होते हैं और फास्ट लर्नर्स होते हैं। कुछ लर्नर्स को बहुत ज्यादा भूख होती है कि मुझे तुरंत सब कुछ चाहिए, या कुछ लर्नर्स को, कुछ शिष्यों को पता ही नहीं चलता कि बहुत सारा स्लो है। तो ये जो एडिशन है उसमें सबको सब कुछ मिलेगा। स्लो लर्नर है उसको एक और भी मिल जाता है कि वो कैसे उसको थोड़ा सा क्या पॉइंट्स उसमें लिखने हैं वो पता चल जाता है। मीडियम लर्नर्स को नॉलेज का एक रेफरेंस बुक मिल जाता है, और फास्ट लर्नर्स को और क्या अपडेट करना है उसके आइडियाज भी उसमें मिल जाते हैं। आपका जो सिलेबस है एनसीआईएसएम का 3 प्रोफेशनल ईयर्स का, उनके सभी के कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से आपको इस चरक संहिता के न्यू एडिशन में मिल जाएंगे। रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है, अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप करने हैं, लेटरल थिंकिंग होती है, जो दूसरी तरह से सोचना क्या होता है उसका स्किल आपको डेवलप करता है, एडिटिंग और रिव्यूइंग का स्किल आपको डेवलप करना है। ये सब इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलता है। अपकमिंग फीचर जो है उसमें आयुर्वेद टीचिंग एंड लर्निंग ऑनलाइन कोर्सेज, कुछ हमने यूट्यूब के वीडियो भी उसमें रखे हैं। तो वो लिंक आपको सुन के जो एक्सपर्ट्स है उनके ओपिनियंस क्या है वो भी रेडीली आपको उसमें अवेलेबल हो जाते हैं। और कंटिन्यूअसली अपडेट करना, खुद को अपग्रेड करना, ये भी इस प्लेटफॉर्म से आपको पॉसिबल होता है। सो हम उसे क्या बोलते हैं कि वाग्भट बुद्धि बोलते हैं। वाग्भट ने क्या किया, चरक सुश्रुत जो अवेलेबल ग्रंथ थे उनको पढ़ा, उसके अनुसार उन्होंने नॉलेज का संग्रह किया, उसको एनालाइज किया, ऑर्गेनाइज किया एक पर्टिकुलर पैटर्न में, और उसका इंटरप्रेट, और जो अभी कंटेम्प्रेरी अवेलेबल है, वाग्भट का जो काल है वो 6th सेंचुरी कहा जाता है। तो 6th सेंचुरी में जो अवेलेबल था, वहां पे जो पेशेंट्स थे, उन्होंने एक टिपिकल ग्रंथ बनाया, दैट इज कॉल्ड अष्टांग हृदय। तो वाग्भट बुद्धि हमारे अंदर भी होनी चाहिए, और हमें जो एप्लीकेबल है, हमारा फायदा क्या है, हमारा पेशेंट पेशेंट के लिए क्या एप्लीकेबल है, वो सब सोच के उसके अनुसार नॉलेज को गेन करता रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड वाग्भट बुद्धि एज पर द एनालिसिस मेथड। हम एक अभी चरक संहिता का जो ऑनलाइन एडिशन अभी जिसके बारे में आपको बता रहा था, उसका एक छोटा सा व्यू हम देखते हैं। आई विल शेयर द स्क्रीन। सो इज इट विजिबल? द लिंक इज विजिबल, वेबसाइट? Yes, sir. ओके। सो दिस इज चरक संहिता ऑनलाइन एडिशन। ये जो है ये फ्रीली अवेलेबल है। आप अगर गूगल में जाके चरक संहिता ऑनलाइन टाइप करते हैं, तो ये जो लोगो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड का, वो लोगो वाला चरक संहिता आपको यूज करना है। देर आर 2 चरक संहिता अवेलेबल ऑनलाइन। वन इज इन संस्कृत एंड दिस वन इज इन संस्कृत प्लस इंग्लिश। तो ये वेबसाइट आपको उसमें अच्छी तरह से मदद करती है। इस वेबसाइट का एक छोटा सा टूर आपको हम करवाते हैं। ये जो चरक संहिता का लोगो आप देखते हैं, एक सेज है, एक ऋषि है। वो ऋषि बुक्स पे है, और वहां पे उनके अंदर बहुत बड़ा समुंदर है, ओशन है। तो ओशन ऑफ नॉलेज इस चरक संहिता, वो ये लोगो अपने आप में स्वयं में वो प्रकाशित करता है कि वो एक समुंदर है, ज्ञान का सागर है। तो ये जो है लेफ्ट साइड में, आप अगर मोबाइल पे देखते हैं, तो मोबाइल पे ये इस व्यू से आपको दिखाई देगा, इस व्यू से आपको दिखाई देगा। मगर मेरा सजेशन ये रहेगा, हमेशा यूज करना है तो उसको डेस्कटॉप व्यू में जाके ही आप यूज करें, तो वो बेटर आपको फायदेमंद होगा। फिर डेस्कटॉप व्यू में जाते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें ये जो चरक संहिता है उसका ये मेन पेज है। उसके बाद उसके जो मैंने आपको 8 सेक्शन बताए थे, सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, उसके बाद विमान स्थान है, शारीर स्थान है, इंद्रिय स्थान है, चिकित्सा स्थान है, कल्प स्थान है और सिद्धि स्थान है। ये 8 सेक्शन का एक एक पेज है। ये जो ब्लू दिखता है, जहां पर भी आपको ब्लू दिखेगा, वो एक हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट है। तो जैसे आप ब्लू पे क्लिक करते हैं, तो आप नेविगेट करते हैं उस पर्टिकुलर पेज पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सूत्र स्थान लिया, तो सूत्र स्थान में क्या क्या है, उस सेक्शन में क्या है, जैसे सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, उस 30 चैप्टर का एक
समरी क्या है, ये आपको सूत्र स्थान के लैंडिंग पेज पे मिल जाएगा। अगर आप राइट में देखते हैं तो वहाँ पे एक इन्फो बॉक्स है। ये जो इन्फो बॉक्स है वो अगेन चैप्टर्स के लिंक को दर्शाता है। अगर हम पहला चैप्टर जैसा है दीर्घनजीवित अध्याय है, तो ये दीर्घनजीवित अध्याय का पेज आपको उसमें खुल जाएगा। जब ये चैप्टर के पेज हमने डेवलप किए हैं, तो इस चरक संहिता के प्रोजेक्ट में नियरली 200 आयुर्वेद स्कॉलर्स, जो भी आप बुक पढ़ते हैं सभी के लेखक उसमें जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं रूप से। और 200 स्कॉलर ने जो मेहनत की है पिछले 10 साल में, वो आप इसमें देखते हैं। एक जब ये टेम्पलेट बनाया था तो एक सोच के बनाया था कि चरक संहिता का हर एक चैप्टर जो है वो रिसर्च पेपर के फॉर्मेट पे होना चाहिए। तो आप अगर हर एक चैप्टर को, हर एक अध्याय को रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद उसके कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के बाद उसमें जो कंटेंट्स है उसका बॉक्स, इन्फो बॉक्स आता है, और उसमें आपको आप देखते हैं कि एक जो एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जिससे हम अधिकरण तंत्र युक्ति कहते हैं, जैसे श्लोकों का ग्रुप है, वो ग्रुप उस क्या दर्शाता है। जैसे ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद के बारे में ये सब दर्शाते हैं, फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ के बारे में जो श्लोक है वो दर्शाते हैं। तो ये सब होने के बाद एक जो सेक्शन आता है वो आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन मतलब उस विषय में इंटर कैसे होना है, उस विषय का बैकग्राउंड क्या है, वो हम देखते हैं। और उसके बाद इंट्रोडक्शन में हर एक अध्याय के बारे में उसका कुछ बैकग्राउंड जो है वो वहाँ वहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़िए, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें मिलेगा। अगर आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, देवनागरी नहीं आता है, जैसे फॉरेन के रीडर्स होते हैं, तो उसको एक्सपांड करके आप डायक्रिटिक्स जो है उसके अनुसार वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये पूरा जो जो चैप्टर अवेलेबल है, ओरिजिनल चरक संहिता जो है वो संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई है। और ये पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं तो ये चैप्टर होने के बाद दो महत्वपूर्ण सेक्शंस इसमें आते हैं। ये है, एक है उसका तत्व विमर्श। तत्व विमर्श मतलब क्या है कि वहां पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, जो मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद के, वो सब सिद्धांत कभी चेंज होने वाले नहीं है। आज से 2000 साल के बाद भी वो चेंज होने वाले नहीं है, वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर टू बी प्रिजर्व्ड एज इट इज। तो वो वहां पे एक लिस्ट आउट कर दिए गए हैं, एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है हर एक अध्याय का। वो और उसके बाद जो आता है वो है विधि विमर्श। विधि विमर्श मतलब अप्लाइड इन्फरेंसेस है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारा चेंज हो चुका है, पहले जो वनस्पति अवेलेबल थी वो अभी अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद उस वनस्पतियों में क्या चेंज आया है, पहले के प्रैक्टिसेस में क्या चेंज आया है, खान पान में क्या चेंज आया है, वो हमें क्लिनिक्स में जो पेशेंट देखते हैं उनको अप्लाई करना जरूरी होता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए जो नॉलेज है वो विधि विमर्श के सेक्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जो विधि विमर्श का सेक्शन है वो एक यूनिक बना देता है उसको कंटेम्पररी अपडेट्स के साथ। जैसे आप ये देखते हैं, ये जो ब्लू लिंक देखते हैं, तो हर एक ब्लू लिंक जो है वो इटसेल्फ उसमें एक नया पेज उसमें खुल जाएगा। अगर आप आयुर्वेद के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आयुर्वेद का पेज आप ओपन कीजिए। आयुर्वेद का जो कंटेम्पररी टेक्स्ट है, कंटेम्पररी फॉर्म है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्कोप ऑफ आयुर्वेद क्या है, हेल्थ के बारे में क्या कहता है, उसमें रिसर्चेस क्या कहते हैं, ये सब जो है ये आयुर्वेद के बारे में आपको पता चलेगा। तो हर एक जो ब्लू लिंक है वो ब्लू लिंक इसी तरह से बनाई गई है। और आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आता है ये कंसेप्ट्स एंड कंटेम्पररी प्रैक्टिसेस वाला। बैक टू टॉप जाइए, उसके बाद लेफ्ट साइड में ये जो कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस का जो सेक्शन है उसमें देखिए, ये जो सेक्शन है देर आर नियरली 164 चैप्टर्स नाउ, मोनोग्राफ्स नाउ। बेसिक लर्निंग ऑफ आयुर्वेद के लिए क्या है, बेसिक लर्निंग ऑफ ये सब जो है फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पॉइंट्स है। तो बेसिक लर्निंग ऑफ आयुर्वेद को क्लिक करते हैं तो व्हाट इज आयुर्वेद, व्हाट इज शास्त्र, मेथड्स ऑफ स्टडी एंड लर्निंग। उसके बाद अध्यापन विधि क्या है, अध्ययन विधि क्या है, न्याय का मतलब क्या है, प्रकृति, देह प्रकृति, मानस प्रकृति, पुरुष, तन्मात्रा, अव्यक्त, ये सब आपके सिलेबस के पॉइंट है फर्स्ट ईयर के पर्टिकुलरली। तो हर एक का जो है, हर एक का एक एक पेज सभी रेफरेंसेस के साथ और कंटेम्पररी रिसर्चेस के साथ आपको इस कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस के सेक्शन में मिल जाएगा। तो उसका दूसरा जो फीचर है, और आपको तो पता नहीं चलता कि इसमें क्या करना है, तो ये जो सर्च विंडो है राइट साइड में अवेलेबल, सर्च विंडो आप उसमें कर सकते हैं। ये सर्च विंडो में जाइए, सर्च विंडो में कुछ जो भी आपको सर्च करना है वो कीजिए, उसके आंसर वो पेज जहाँ पे रेफरेंसेस अवेलेबल है वो रेफरेंसेस आपको उसमें बता देगा।
प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, उसके कंट्रीब्यूटर्स के बारे में जानना है, इसमें आपको कुछ क्वेरी है, तो ऑलवेज यू कैन कनेक्ट विथ अस। और उसके बारे में लिखना है कुछ आपको, अगर लिखने की आदत है और अपग्रेड करने की कुछ चाहत है, तो भी आप उसमें कंट्रीब्यूट भी उसमें कर सकते हैं। तो ये जो एक रिसोर्स है चरक संहिता न्यू एडिशन का, ये चरक संहिता न्यू एडिशन हमने 2013 से लेकर 2019 तक उस पर बेसिक काम किया। और 19 नहीं, 2018 में हमने वैक में, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में इसको लॉन्च किया। एक और 2021 में पूरे का पूरा विकिपीडिया के फॉर्मेट में वो ऑनलाइन अवेलेबल था। तो ये जो ऑनलाइन अवेलेबल था, तो उसमें उसका जो रीडरशिप है, वो रीडरशिप हम देखते जाते हैं। तो उसमें आपको ये जो आप रीडरशिप देखते हैं, तो नियरली 2 मिलियंस पेज व्यूज आर देयर टिल नाउ। और 1 मिलियन लास्ट ईयर में थे, अभी अक्टूबर तक 8.68 लाख्स पेज व्यूज इसमें आ चुके हैं। और नियरली 50,000 यूजर्स हर महीने इस चरक संहिता को देखते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वही बताते हैं कि चरक संहिता का सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो आउटकम आपका जो टीसीपी में दिया गया है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चरक संहिता, अगर इतने सारे लोग इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो that itself shows that it is highly significant for readers। और वो जो सोर्स है वो आप, आपके जैसे आयुर्वेद के इंटरेस्टेड स्कॉलर्स जो है, वो अच्छी तरह से फ्रीली उसमें यूज कर सकते हैं। ग्लोबल रीडरशिप जो है आप उसमें देख सकते हैं, ब्लू जो वर्ल्ड के मैप में है, नियरली 180 कंट्रीज से ज्यादा रीडर्स इस चरक संहिता को ऑनलाइन पढ़ते हैं, देखते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का, इट इज अबाउट मॉडर्न हेल्थ डिप्लोमेसी। ये जो हेल्थ डिप्लोमेसी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल उभर के आया है। जैसे पहले नेशनल पॉलिसीज रहती थी, और आजकल नेशनल पॉलिसीज जो है वो हमेशा इंटरनेशनल पॉलिसीज हो गई। जैसे कोविड का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। जैसे कोई वायरस वहां से आया और वहां उसने पूरे ग्लोबल पैंडेमिक पैंडेमिक बना दिया। तो उस पैंडेमिक पैंडेमिक को लड़ने के लिए हमारे पास कोई उपाय अगर किसी देश के पास है, तो उस देश ने वो उपाय शेयर करना चाहिए। जो थ्रेट्स है उसको कॉमनली हम कैसे डिफेंस कर सकते हैं, ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी मॉडर्न हेल्थ डिप्लोमेसी में आती है। तो हमारे चैलेंजेस क्या है कि इसमें इश्यूज ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट एंड कंसर्न जो है वो आते हैं, पैंडेमिक्स आते हैं, न्यूली इमर्जिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस आते हैं, देन थ्रेट्स ऑफ बायोटेररिज्म आते हैं। तो इसको डिप्लोमेसी में हम क्या कर सकते हैं, वो हमें देखना जरूरी होता है। जो मेन गोल्स है, बेटर हेल्थ, सिक्योरिटी एंड पॉपुलेशन का जो हेल्थ है उसके बारे में हमें फोकस करना है। देन improved relations between the states and the commitment of a wide range of actors to work together to improve health है। then achievement of outcomes that are deemed fair and support the goals of reducing poverty and increasing equity। हम बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए आयुर्वेद क्या कर सकता है, हम एज एन आयुर्वेद वैद्य क्या कर सकते हैं, कैसे हम सभी संसार को हेल्प कर सकते हैं, वो डिप्लोमेसी में आता है। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है आयुर्वेद का हमें दिखाई देता है। तो आजकल अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस में लाइफस्टाइल डिसीजेस जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। 40 to 50% इंडियंस आर प्री हाइपरटेंसिव और 65% अर्बन आर ओबेज। वी आर अ कैपिटल ऑफ डायबिटीज। अगर ये डायबिटीज का कैपिटल है, हाइपरटेंशन का कैपिटल है, तो हेल्थ कहाँ गई, स्वास्थ्य कहाँ है, वो ढूंढना जरूरी है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का डाटा भी जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग साइन हमें करता है। और यही हमारे क्लिनिक्स में, हमारी सोसाइटी में हमारा जो रोल है वो साबित करता है। क्लिनिक में बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये सिनेरियो हो जाता है। मोदी जी को अभी रिसेंटली, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक कहा कि 10% कुकिंग ऑयल हमें रिड्यूस करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ पैंडेमिक। और पैंडेमिक ऐसा कोरोना के जैसा पैंडेमिक नहीं है, वो ओबेसिटी का पैंडेमिक है। अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक प्रधानमंत्री को एक आह्वान करना पड़ता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, 10% कुकिंग ऑयल जो है रिड्यूस कीजिए, फूड को कम कीजिए है,
कीजिए। अब ये जो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमारा एज ए वैद्य रोल जो है, वो रोल ये है कि हम पेशेंट को गाइड कर पाए कि हमें कैसे उसमें उस पेशेंट को ट्रेन करना है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाए। तो हमारा रोल क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, देन प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एज वेल एज क्रॉनिक डिसीज। इसमें हम क्या कर सकते हैं? और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जनरली ऐसे 70% केसेस होते हैं जो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, जहाँ पे सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ पे आयुर्वेद के दरवाजे खटखटाता है पेशेंट। तो उस फाइल को लेते हुए उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है या फिर हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन है, उसको हम कैसे ट्रीट कर पाए, उसको कैसे डिले कर पाए, और उस पेशेंट को कैसे हेल्प कर पाए, ये सब हमारा रोल है, और वो ही आयुर्वेद हमें अच्छी तरह से सिखाता है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है उस मैनेजमेंट में? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे हमारे किचन में जो मेडिसिन रहते हैं, जैसे हल्दी है, आपको पता होगा हल्दी बहुत अच्छी तरह से कैंसर में और जो ओबेसिटी है उसमें भी अच्छी तरह से काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, गिलोय है, उसके बाद अश्वगंधा है, किचन में जो रहने वाला हींग है या फिर मरी है, ब्लैक पेपर है, उसका हम एज ए मेडिसिन कैसे यूज करें, और पेशेंट को कैसे बताएं कि उसका यूज कैसे अच्छी तरह से करना है। गार्लिक है, उसको कैसे यूज करना है, वो नेचुरल अवेलेबल रिसोर्सेज से है, उसको मेडिसिन की तरह से कैसे यूज करना है, वो हमें बताना जरूरी होता है। देन रिमूविंग द कॉज, मतलब वो क्यों होता है, क्या होता है वो तो सबको पता है, मगर क्यों होता है, कैसे होता है, अचानक से क्यों होता है, ये सब जानने के लिए आपको आयुर्वेद का ज्ञान होना जरूरी है। वही हमें आयुर्वेद बताता है। डाइट और लाइफस्टाइल का मॉडिफिकेशन जो है, वो अच्छी तरह से उसके, हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें 33% डाइट होता है, 33% लाइफस्टाइल होता है, और 33% ओनली मेडिसिन होता है, थेरेपीज होती है। ये जो 66% रोल है प्रिस्क्रिप्शन का, डाइट का और लाइफस्टाइल का, वो अच्छी तरह से पेशेंट में बताना आना चाहिए, वो हमें आयुर्वेद बताता है, और वो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। देन पंचकर्म एक एडवांटेज है जो हमारे लिए प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए अच्छी तरह से यूज हेल्प करता है। फिर करेक्शन ऑफ डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ये हमारा एक यूनिक पॉइंट है आयुर्वेद का। जो आम और अग्नि जो है, वो एलोपैथिक साइंस में आपको कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, मगर आम और अग्नि का जो कंसेप्ट अगर आप समझ जाए तो अच्छी तरह से आप डिसीज को ट्रीट करना जान सकते हैं। Other than this medical science, how Ayurveda is helpful for us? That is, it is having a wonderful definition of Ayu, that is Sukhayu, Hitayu, Dirghayu. वो जो डेफिनेशंस है, हैप्पी, कंफर्टेबल एंड बेनिफिशियल लाइफ फॉर सोसाइटी, कैसे जीना है, वो आयुर्वेद हमें सिखाता है। वो चरक संहिता में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हम जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहना चाहते हैं, कि हम जाने के बाद भी, जो हम एलआईसी का जो देखते हैं, बाद भी हमारा कुछ इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे रहना है, वो भी आयुर्वेद की एक देन है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशल कम्युनिकेशन स्किल, आपकी आयुर्वेद आपको सब कुछ बताता है कि आपको किसके साथ रहना है, किसका कैसे बिहेव करना है, कहाँ पे खाना खाना है, किसके साथ नहीं रहना है, किसका कंपेनियन होना चाहिए, ये सब सूत्र आपको सूत्र स्थान भी मिल जाएंगे। देन प्रोफेशनल एज वेल एज मेडिकल इथिक्स जो है, नोबल बिहेवियर के लिए, वो भी आपको मिलते हैं। हाइजीन और सोशल सस्टेनेंस जो है, कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ पैंडेमिक्स जो है, ये सभी जो पार्ट है, ये ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी जो है उसका एक पार्ट है। तो आयुर्वेद को हम उस तरह से कैसे देख सकते हैं, कैसे उसमें इम्प्लाई कर सकते हैं, वो सोचता, और उसको सोसाइटी को हेल्प करना वेलफेयर के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन रिजुविनेशन, रसायन जो है, एंटी एजिंग थेरेपीज जो है, वो अच्छी तरह से हम पेशेंट को इम्प्लाई करते हैं। देन लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लैब इन्वेस्टिगेशन को बिना रेफर किए हम पेशेंट को क्लिनिकल डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, और उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और उसका डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का, हेल्थ केयर में कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं। जैसे हमारा देश है बहुत गरीब देश, उसको जाना जाता है, डेवलपिंग कंट्री है, तो कम से कम पैसे में आप अच्छे से अच्छा दवाई, अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, हेल्थ केयर का जो डायग्नोस्टिक कॉस्ट है वो हम कैसे कम कर सकते हैं, वो हमें सोचना इस आयुर्वेद के थ्रू आता है। देन असेसमेंट ऑफ वंस ओन कैपेसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारी कैपेसिटी क्या है और उसके अनुसार हम प्रोडक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, वो भी हमें आयुर्वेद सिखाता है। जैसे हम देखते हैं कि सिम्बायो हेल्थ, मतलब डिफेंसिव और एग्रेसिव, एक मैच अगर जीतनी है तो आपको डिफेंसिव भी होना चाहिए और एग्रेसिव भी होना चाहिए, तो वो दोनों को एग्रीगेट करके एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम आप कैसा बना सकते हैं, वो आयुर्वेद डिप्लोमेसी ऑफ हेल्थ इसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो वो आपको अच्छी तरह से पॉलिसीज, जो अपने सूत्र है उसको इम्प्लाई करना आना चाहिए। डाइट है, मेंटल पैटर्न्स है, स्लीप पैटर्न्स है, बिहेवियर पैटर्न्स है, ये चार मुख्य कॉज
जो है वो आजकल सभी संसार को परेशान करते हैं. सो दोज फोर पॉजिटिव फैक्टर्स आर टू बी रूल्ड आउट एंड करेक्टेड प्रॉपरली फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अ डिसीज एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ. तो ये जो एक्टिविटी है, हम इस सेशन के लास्ट में आ चुके हैं. तो आपको अपने स्मार्टफोन अगर अलाउड है, राजू सर, अवेलेबल अवेलेबल है स्मार्टफोन सभी के पास? Yes, sir. ओके, दे कैन जस्ट गूगल इट. जो चरक संहिता ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसको गूगल कर सकते हैं. जो एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं. अभी करवाना है तो अभी करवाइए अगर टाइम परमिट करता है. नहीं तो फिर ये जो वर्ड्स है जैसे आहार विधि, ये जो वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा. आप अपने स्मार्टफोन पे जाके, ये स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, sir. तो यू जस्ट टाइप चरक संहिता ऑनलाइन. ये पहला पेज जो है वो आप खोल सकते हैं. इट इज अ बिट स्लो हेयर. आपके इसमें फास्ट हो सकता है शायद. तो उसमें जाके आहार विधि ये टाइप कीजिए. आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ऊपर एक सर्च का विंडो होगा, उसमें आहार विधि टाइप कीजिए. यस. तो ये पेज आपको खुल जाएगा. इस आहार विधि में आपको अन्न आहार टर्मिनोलॉजीज, उसके बाद उसके जो संस्कार है, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड जो है वो है, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ फूड है वो है, डाइटरी गाइडलाइंस एज पर आयुर्वेद. मतलब क्या है कि मॉडर्न डाइटेटिक्स जो है वो ओनली कैलोरीज के ऊपर फोकस करता है, मगर कैलोरीज को फोकस करते हुए भी उसका प्रोसेसिंग कैसे हुआ है, एक आहार का जो इम्पैक्ट है हमारे हेल्थ के ऊपर वो कैसे किस किस तरह से मायने रखता है, कैसे बनाया गया है, किस पदार्थों से बनाया गया है, किसने बनाया है, उसके बाद वो खाना कैसे खाया है, कहाँ पे खाया है, वो सब इसमें मायने रखता है. तो ये जो इम्पोर्टेंस है, ये सब इम्पोर्टेंस आपको इस पेज में जो रेफरेंसेस के साथ उसमें मिलेगा. अन्न क्या है, आहार क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, इफेक्ट ऑफ फूड क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर क्वांटिटी क्या है, हेवी और लाइट टू डाइजेस्ट मतलब पाचन में हल्का और भारी आहार क्या होता है, उसके गुण क्या है. अगर आप इसमें मोबाइल पे देख रहे हैं तो आई विल गो टू अ मोबाइल व्यू. यू विल सी लाइक दिस. हैव यू गॉट द पेज? आपको पेज मिला वो मोबाइल पे? Yes, sir. ओके. तो आप उस पेज को आहार विधि के नाम से देख सकते हैं, कंटेंट पे जा सकते हैं. सो जस्ट टेकिंग फूड इज अ स्मॉल प्रोसेस ऑफ आवर डेली रूटीन. ये जो डेली रूटीन की स्मॉल प्रोसेस है वो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, वहां से लेकर वो अपने हेल्थ में, अपने शरीर में क्या क्या जाके करेगा, उसमें क्या क्या माइलस्टोन्स आते हैं, वो सब जो है वो एक सब अच्छी तरह से शास्त्रीय तरीके से चरक संहिता में बताया गया है. और उसमें इस पेज पे आपको उसका चरक, न कि चरक संहिता बल्कि सुश्रुत और वाग्भट, इन दोनों के रेफरेंसेस पे आपको मिलेंगे. आहार के बाद पानी कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, अपने अग्नि के अनुसार क्या रहना चाहिए, माउथ क्लीनिंग कैसा करना है, माउथ फ्रेशनर क्या यूज करना है, उसके बाद लाइफस्टाइल क्या करनी है. अगर ऐसा भी है कि अगर खाना खाने के बाद तुरंत आप भाग दौड़ करते हैं तो वो भी आपका पाचन ठीक से होने वाला नहीं है. या फिर खाना खाने के बाद तुरंत आप दिवा स्वाप करते हैं, दिन में सोते हैं, तो भी पाचन ठीक से होने वाला नहीं है. और वो भी एक मेजर कारण हमें
पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो पेशेंट को औषधि देने से पहले हमें पहले बताना पड़ता है कि खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है, या खाना खाने के बाद आपको तुरंत भागदौड़ नहीं करनी है। तो ये जो कारण है, ये कारण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटे से कारण है मगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें पेशेंट को बताने होते हैं और उसके अनुसार उसकी ट्रीटमेंट हमें करनी होती है। तो ये जो चरक संहिता का रिसोर्स है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये ज्ञान का समुद्र है। वो ज्ञान का समुद्र जो है वो आपको अच्छी तरह से यूज करना आना चाहिए, और उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जो शास्त्रीय रेफरेंसेस हैं, उन शास्त्रीय रेफरेंसेस के अनुसार उसको आपको देखना आना चाहिए। दूसरा जो है वो आप सर्च कर सकते हैं व्यायाम। व्यायाम अगर सर्च करते हैं, यस, तो ये व्यायाम का जो पेज है उसमें आता है। तो सिंपल दूसरी जो प्रोसेस है हमारे दिन ब दिन डेली एक्टिविटीज में रहने वाली, हमारे पास पेशेंट आते हैं जो सुबह व्यायाम करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग दोपहर में खाने के बाद व्यायाम करते हैं, कुछ लोग रात को खाने के बाद व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम कितना करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार कितना होना चाहिए, उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या है हेल्थ के ऊपर, उसका टाइमिंग क्या है, उसका मेडिसिनल डोज क्या है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर व्यायाम अच्छी तरह से सही तरीके से नहीं किया गया तो वो भी एक हेतु स्वरूप हो सकता है, कारण स्वरूप हो सकता है। तो ये जो नॉलेज है ये इंफॉर्मेटिव सोर्स है। ये इंफॉर्मेशन का सोर्स आपको नॉलेज में, और नॉलेज का सोर्स आपको जो विजडम में कन्वर्ट करना है, और विजडम में कन्वर्ट करने के बाद आपको पेशेंट को उसका एजुकेशन करना है और ट्रीट करना है, ताकि हम अपना जो रोल है, अपना वैद्य का जो रोल है सोसाइटी के हेल्थ के लिए, वो अच्छी तरह से हम उसमें बता पाए। तो एक रेफरेंसेस का जो है, आप अच्छी तरह से आप थ्रू आउट द योर प्रोफेशनल लाइफ यू कैन, इट विल बी अवेलेबल ओवर हियर, एंड थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ यू कैन यूज दीज रेफरेंसेस। I will share my screen again to conclude. So these are some of the sources। ये आपको चरक संहिता का एक बताया, उसके बाद एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज का सोर्स जो है वो भी एक अच्छा सोर्स है, जिसमें संस्कृत में संहिता अवेलेबल है। मोनियर विलियम संस्कृत डिक्शनरी है, स्पोकन संस्कृत ओआरजी है, नमस्ते ऐप, नमस्ते पोर्टल है। ये आप अच्छी तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। सो लास्टली आई विल से दैट नहि ज्ञाने सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। देर इज नथिंग प्योर देन नॉलेज। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप आयुर्वेद में आए हैं, और आयुर्वेद का न केवल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए मगर खुद को अच्छा बनाने के लिए आप कैसे रह सकते हैं, वो सब लेसन्स आप नॉलेज ऑफ लाइफ जो आयुर्वेद कहा जाता है उसमें से सीखेंगे। अगेन आई एम थैंकफुल टू द organizers for giving me this opportunity. So let's create a beautiful world of knowledge of life with Ayurveda. Thank you all. If there are any queries, I will be happy to share my views on those queries. No queries, sir. ओके, उसका मतलब ये है कि एक तो सबको सब समझ में आ गया है, या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है, क्या है इसमें से? सब समझ आ बच्चों ने गए। यूज किया, स्टूडेंट्स ने यूज किया चरक संहिता ऑनलाइन, याद रहेगा अभी रिसोर्स? यस सर। Okay, good, great. So you can use it. If you have any query, if we want to contribute to this edition, let me know. I will be happy to have you in this contribution. Thank you so much, sir, for such an enlightening session. We are really grateful to you, sir, for sparing time
from your busy schedule and sharing your knowledge with us. Thank you so much, sir. Thank you. Namaskar.